Hello students, I'm Jashanjot, Assistant Professor in Commerce and Management. I warmly welcome you all to Ajibis, your learning partner in Commerce and Management Education. You're watching lecture number 33 and today we will be diving into a very crucial and insightful topic, that is organizational culture. Organizational culture होता क्या है? Organizational culture refers to the shared values, beliefs, practices, and norms that shape the social and psychological environment of a business, and it influences how employees interact with each other, make decisions, and align with the company's vision and mission. In this session, we will explore the concept of organizational culture, characteristics, types, and functions of organizational culture. We will also look at how culture is formed, sustained, and changed within an organization and why it plays a vital role in achieving long-term business success. So, stay tuned till the end as we break down this important topic in a simple, structured manner. Let's begin with the first one, that is meaning and definition. Organization culture होता क्या है? It refers to the shared values, beliefs, norms and practices जो हमारा behavior and mindset है जो लोगों का विद इन द ऑर्गेनाइजेशन उसको क्या करता है, शेप करता है, एंड इट इज़ सोशल ग्लू दैट बाइंड्स मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर. Definition: according to the Edgar Sechin, a renowned organizational psychologist, and organizational culture is a pattern of shared basic assumptions that the group learned as it solved its problems of external adaptation and internal integration, which has worked well enough to be considered valid and therefore to be taught to new members. In simple words, organizational culture defines how things are done in an organization. तो हमें मेनली जो एक बात है बस उसको दिमाग में रखना है. ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होता क्या है? हमें ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बताता है कि कैसे हमें चीज़ें करनी हैं, ठीक है. कैसे जो अलग अलग कल्चर के लोग हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हमें उनको बाइंड करके रखना है. क्लियर? तो इसी के साथ हम पढ़ेंगे एक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो एक रिवॉल्व करता है एक आइडिया के अराउंड कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्स अ यूनिक वे ऑफ वर्किंग, थिंकिंग एंड बिहेविंग एज वी ऑल नो, एंड दिस कल्चर इवॉल्व्स ओवर टाइम बेस्ड ऑन फाउंडर्स बिलीव्स एंड लीडरशिप स्टाइल. जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में लीडरशिप स्टाइल्स पढ़े हैं, डिफरेंट डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं. तो उसके बेस्ड अपॉन दैट जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर डेवलप हो जाता है, कैसी हिस्ट्री रही है, कैसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है कैसा, पॉलिसीज़ कैसी हैं, इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप है वहाँ पे लोगों के कैसे हैं, कम्युनिकेशन कैसे फ्लोट हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में, सिम्बॉलिक एलिमेंट्स लाइक ड्रेस कोड, ऑफिस लेआउट, सेरेमनीज एट्सेट्रा, ये कैसे हैं. तो इन सारी चीज़ों को मिला के ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर सेट होता है. So the culture influences how employees interact, make decisions, resolve conflicts, and respond to change. Moving towards the next, that is the characteristics of organizational culture. Firstly, shared values. कुछ certain core beliefs होते हैं that guide behavior, example innovation, integrity, and teamwork. Second, norms and rules, unwritten rules that define acceptable behavior within the organization. थर्ड इज सिम्बल्स एंड लैंग्वेज लाइक हमने पिछली स्लाइड में भी पढ़ा है कि जो सिम्बल्स हैं ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर सेट करते हैं. स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी यूज़ करिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, पर्टिकुलर लोगोज, रिचुअल्स और ड्रेस कोड को फॉलो कर रही है, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की. कोई स्टोरी है कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, कोई मिथ्स हैं, नैरेटिव्स कुछ नैरेटिव्स होते हैं सेट हो जाते हैं पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पर्टिकुलर किसी फाउंडर के लिए, जहाँ कुछ पास्ट जो इवेंट्स हैं वो शेप आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर की. देन लीडरशिप इन्फ्लुएंस, लाइक हमने पहले भी देखा था कि जो लीडरशिप स्टाइल्स हैं ये भी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है. एंड स्टेबिलिटी, कल्चर टेंड्स टू बी स्टेबल एंड स्लो टू चेंज, ऑफन पास डाउन ओवर द टाइम, ये भी ज़रूरी है. सेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रोवाइड्स एम्प्लॉयज़ विद अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड पर्पस. इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस, अ स्ट्रॉन्ग कल्चर कैन मोटिवेट एम्प्लॉयज़ एंड एनहांस द प्रोडक्टिविटी. इसी के साथ हम करेंगे टाइप्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हियर.
टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो 6 मेनली जो टाइप्स हैं वो यहाँ पे हम वो स्टडी कर रहे हैं। फर्स्टली हायरार्किकल कल्चर, सेकंड क्लैन कल्चर, एडोक्रेसी कल्चर, मार्केट कल्चर, ब्यूरोक्रेटिक कल्चर एंड इनोवेटिव कल्चर। तो अभी वन बाई वन इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम बात करेंगे हायरार्किकल कल्चर को। हायरार्की होती क्या है? हायरार्की होती है पर्टिकुलर, हम एक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या है फ्लोट कर रही है, ठीक है। लाइक यहाँ पे देखिए, ये देखिए ऐसे करती है। तो क्या हो रहा है, हायरार्की कल्चर बताता क्या है? हायरार्की कल्चर डिफाइन करता है वेल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम वेयर डिसीजन मेकिंग कैसे होती है सेंट्रलाइज। यहाँ पे देखिए ये एक बंदा है जो कंट्रोल पूरा कर रहा है, ये 3 फर्दर जो पर्सन है उनके ऊपर। तो ये सेंट्रलाइज रहती है डिसीजन मेकिंग। कम्युनिकेशन फ्लो करती है टॉप डाउन मैनर में। एम्प्लॉयज़ एक्सपेक्ट करते हैं टू फॉलो सेट रूल्स एंड प्रोसीजर्स स्ट्रिक्टली, जो भी टॉप मैनेजमेंट ने सेट कर दिए हैं। एंड अथॉरिटी लाइज मेनली विद द सीनियर मैनेजमेंट, ठीक है। एंड सेकेंडली क्लैन कल्चर। क्लैन कल्चर आपको यहाँ से क्लियर हो रहा होगा, ये देखिए क्लैन कल्चर कि पर्टिकुलर कुछ सेटअप पर्सन्स होते हैं और वो मिलके क्लैन बना लेते हैं, क्लोज नेट फैमिली लाइक, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्लैन कल्चर। ये स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी होती है, कोलैबोरेशन होती है, म्यूचुअल सपोर्ट काफ़ी होती है यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की, और लीडरशिप टेक्स ऑन द रोल ऑफ मेंटोरशिप, encouraging open communication and trust. This culture fosters loyalty, motivation as individuals feel valued and connected within the organization. इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन, दैट इज़ द एडोक्रेसी कल्चर। एडोक्रेसी कल्चर होता क्या है, ये एम्फेसाइज करता है क्रिएटिविटी। ये देखिए, ये आपको ये लाइट से दिख रही है ना, ध्यान से देखिए, ये देखिए एक लाइट से दिख रही है ना, यहाँ पे क्या है, ये लाइट दिख रही है मतलब आइडिया, क्रिएटिविटी, ठीक है। क्रिएटिविटी मतलब इनोवेशन। सो एडोक्रेसी कल्चर एम्फेसाइज ऑन क्रिएटिविटी, एजिलिटी एंड इनोवेशन। एंड ऑर्गेनाइजेशंस विद दिस कल्चर आर टिपिकली फास्ट मूविंग होते हैं एंड लेस हायरार्किकल होते हैं और प्रमोट करते हैं एक्सपेरिमेंटेशन के न्यू आइडियाज़ को। यहाँ पे रिस्क काफ़ी होते हैं नो डाउट, बट इनिशिएटिव लेना भी ज़रूरी होता है। इनकरेज करा जाता है एम्प्लॉयज़ को इनिशिएटिव लेने के लिए ऑन कैलकुलेटेड रिस्क। It is a best suited for industries where innovation and adaptability are key to survival and growth. Then the moving towards the fourth one, that is the market culture. Market culture होता क्या है, यहाँ पे prioritize करते हैं results को, competition को, achieving measurable goals को, and organization with this culture are externally focused, striving to outperform competitors and meet customer expectations. Third one is employees are driven by clear objectives, performance matrices and accountability. Success is often equated with the productivity and profitability. Like यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए, ये क्या दिख रहा है, ग्रोथ से दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है। तो इट मीन्स क्या है, प्रोडक्टिविटी दिख रही है आपको, प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है, सक्सेस दिख रही है, क्लियर कट, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, मार्केट कल्चर। देन द फिफ्थ वन, ब्यूरोक्रेटिक कल्चर। ब्यूरोक्रेटिक कल्चर क्या है, ये देखिए आपको कुछ एक पेज सा दिख रहा है, एक पेज सा दिख रहा है यहाँ पे। ये क्या बता रहा है कि पॉलिसीज़ हैं कुछ सर्टेन फ्रेम की गई हुई हैं और स्ट्रिक्टली हमें उनको फॉलो करना है। फॉर्मल प्रोसीजर है, रिटर्न में करा है तो फॉर्मल प्रोसीजर है, एंड क्लियरली डिफाइन करता है रोल्स को विद इन द स्ट्रक्चर हायरार्की। इसी के साथ ये देखिए एक पर्सन है, यहाँ पे कुछ सेटिंग वाला कुछ आइकन दिख रहा है, तो इट मीन्स इनोवेशन दिखाई दे रही है। तो इनोवेटिव कल्चर, सिक्स वन इज द इनोवेटिव कल्चर। ये फॉस्टर करता है वर्क इन्वायरमेंट को, जो इनकरेज करता है क्रिएटिव थिंकिंग को, एक्सपेरिमेंटेशन का एंड नोवल अप्रोचेस को। इट सपोर्ट्स रिस्क टेकिंग, वैल्यूज न्यू आइडियाज दैट चैलेंज एग्जिस्टिंग नॉर्म्स। तो ये कल्चर है थ्राइव करता है कोलैबोरेशन को, ओपन माइंडेडनेस को, एंड अ विलिंगनेस टू एक्सप्लोर मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स इन परसूट ऑफ कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शंस की। फंक्शंस क्या है, फर्स्ट जो फंक्शन है डिफाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिटी को, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिटी मतलब ये क्या कर रहे हैं, यूनिक आइडेंटिटी बताता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, डिस्टिंग्विश करता है उसको दूसरी कंपनियों से, ऑर्गेनाइजेशन से। सेकेंडली फैसिलिटेट्स कमिटमेंट्स, तो ये इनकरेज करते हैं एम्प्लॉय की लॉयल्टी को, कमिटमेंट को टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड वैल्यूज़। थर्ड फंक्शन क्या है, प्रमोट करते हैं सोशल सिस्टम स्टेबिलिटी को। कल्चर प्रोवाइड करता है स्टैंडर्ड्स फॉर बिहेवियर, रिड्यूसिंग एम्बिग्यूटी एंड कन्फ्लिक्ट अमंग एम्प्लॉयज़।
Fourth is shapes behavior through shared values and norms. Culture guides how employees interact and make decisions. Fifth is enhances communication. A strong culture improves internal communication by developing a shared language and understanding. Sixth is sports strategic goals. Culture aligns employee behavior with the organization's mission and strategic direction. देन फैसिलिटेट करते हैं कंट्रोल को. इनफॉर्मल कंट्रोल मैकेनिज्म होता है बाय एस्टैब्लिशिंग एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ द behavior. That's all for the today. So we understood here कि how organization culture forms the backbone of every workplace. It not only defines the environment in which people work but also influences behavior, performance, and overall organizational effectiveness. I hope this session helped you grasp the meaning, characteristic types, and functions of organizational culture in a real work context. If you found this lecture useful, don't forget to like, share, comment, and subscribe to the Azubi channel for more such insightful sessions on commerce and management topics. Keep learning, stay curious, and I will see you in the next lecture. Thank you and take care.